हेलो दोस्तों, मैं हूं तरुण और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की इंग्लिश का लेसन नंबर 16 जिसका नाम है चिमी द ब्रेव गर्ल। चिमी बहादुर लड़की। Jimmy was a orphan. Nobody knew where she had come from, yet everyone accepted the frail little girl and named her Jimmy, the little sparrow. जिमी एक गरीब अनाथ थी। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ से आई है, फिर भी सभी ने उस कमजोर बच्ची को स्वीकार कर लिया। उसका नाम जिमी रखा। She fetched vegetables from the corner shop or looked after babies when their mothers went shopping. वह कोने की दुकान से सब्जियां लाती थी या बच्चों की देखभाल करती थी जब उनकी माँ खरीदारी करने जाती थी। If the maid didn't turn up, Jimmy was there to help, cleaning vessels, sweeping the floor and so on. अगर नौकरानी नहीं आती तो चिमी मदद करने के लिए बर्तन साफ करती, फर्श की सफाई करती आदि के लिए मौजूद थी। Jimmy lived on leftovers. Women in the neighborhood gave her. चिमी बचे हुए पर रहती थी और पड़ोस की महिलाओं ने उसे दे दिया। The girls of her age gave her their discard clothes. उसकी उम्र की लड़कियों ने उसे अपने फेंके हुए कपड़े दे दिए। Everybody liked Jimmy except पार्वती काकी। पार्वती काकी को छोड़कर सभी जिमी को पसंद करती थी। She had a big house with a beautiful garden full of jasmines and roses, but nobody was ever allowed in. The flowers were meant for puja. उसका एक बड़ा सा घर था जिसमें चमेली और गुलाबों से भरा एक सुंदर बगीचा था, लेकिन किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। फूल पूजा के लिए थे। Parvati Kaki's house was almost like a mansion built in traditional style with a big wooden car door, huge halls and chandeliers. पार्वती काकी का घर लगभग पारंपरिक शैली में बनी हवेली जैसा था, जिसमें लकड़ी के बड़े नक्काशीदार दरवाजे, विशाल हॉल और झूमर थे। Surprisingly, the windows, especially of the rooms, were very small. हैरानी की बात यह है कि खिड़कियां खासकर कमरों की बहुत छोटी थी। They were decorated with beads and zari curtains and hangings. उन्हें मोतियों और जरी की पर्दों और टांगों से सजाया गया था। He was said that Parvati Kaki's ancestors were related to the great Peshwas who had ruled Maharashtra during the 18th and 19th century. ऐसा कहा जाता है कि पार्वती काकी के पूर्वज महान पेशवाओं के संबंधी थे जिन्होंने 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान महाराष्ट्र पर शासन किया था। In the big house, Parvati Kaki lived with her son Vinayak, his wife Gauri, and her little grandson Chotu. बड़े घर में पार्वती काकी अपने बेटे विनायक, उनकी पत्नी गौरी और उनके छोटे पोते छोटू के साथ रहती थी। छोटू was a great favorite with the girls. छोटू लड़कियों का काफी चहेता था। गौरी भाभी, as Chotu's mother was called, was a very nice educated lady and didn't mind Chotu being carried by others. गौरी भाभी छोटू की माँ कहलाती थी, एक बहुत अच्छी शिक्षित महिला थी और छोटू को दूसरों द्वारा उठाए जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। Parvati Kaki, however, kept a vigil like a watchdog and never allowed Jimmy to touch Chotu. हालांकि पार्वती काकी ने प्रहरी की तरह चौकस रखी और जिमी को छोटू को न छूने की अनुमति दी। Jimmy had to be satisfied with cooing to Chotu from a distance how she wished she could play with him. जिमी को छोटू को दूर करने से ही कुछ पर संतोष करना पड़ा। वह कैसे चाहती थी कि वह उसके साथ खेले।
Every year when during the monsoons, the river Mutha near Pune gets flooded. People gather to watch the flood waters. हर साल जब मानसून के दौरान पुणे के पास मुथा नदी में बाढ़ आती है तो लोग बाढ़ के पानी को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं. That year when the level of the water rose, no one bothered. जब पानी का स्तर बढ़ा तो किसी ने ध्यान नहीं दिया. Suddenly the news came that Panshet Dam had given way and the waters of Mutha river had entered the city. अचानक खबर आई कि पानशेत बांध ने रास्ता दे दिया है और मुथा नदी का पानी शहर में घुस गया है. Children were asked to rush home from school. बच्चों को स्कूल से घर आने को कहा गया. Shawarpet, where Jimmy and her friends lived, and other areas on the river banks were in danger of being flooded. शनिवार पेट, जहाँ चिमी और उसके दोस्त रहते थे, और नदी के किनारे के अन्य इलाकों में बाढ़ का खतरा था. At first the water was just knee deep, but it rose fast. पहले तो पानी सिर्फ घुटने तक गहरा था, लेकिन यह तेजी से ऊपर उठा. People living on the ground floors were shifted to places of safety. भूतल पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया. Those who lived in 2 or 3 storied flats climbed to the top. There was confusion everywhere. 2-3 मंजिला फ्लैट में रहने वाले लोग ऊपर चढ़ गए. हर जगह भ्रम था. Vinayak Parvati Kaki's son had gone to Mumbai on business. पार्वती काकी का पुत्र विनायक व्यापार के सिलसिले में मुंबई गया था. पार्वती काकी एंड गौरी भाभी वर ऑन द ग्राउंड फ्लोर. पार्वती काकी और गौरी भाभी ग्राउंड फ्लोर पर थी. When water entered their house, Parvati Kaki was in puja room and Gori Bhabi in the kitchen. जब पानी उनके घर में घुसा तो पूजा कक्ष में पार्वती काकी और किचन में गौरी भाभी थी. Within seconds, the water rose. The police persuaded Parvati Kaki and Gori Bhabi to climb to the top floor. पुलिस ने पार्वती काकी और गौरी बाबू को ऊपर की मंजिल पर चढ़ने के लिए राजी किया. हड़बड़ी में राजी किया. In the hurry and confusion, they forgot that छोटू was sleeping on the first floor. हड़बड़ी में वे भूल गए कि छोटू पहली मंजिल पर सो रहा है. The staircases were flooded. सीढ़ियों में पानी भर गया. It was impossible to get to the bedroom on the first floor. पहली मंजिल पर बेडरूम में जाना असंभव था. Though the door to the room was closed, it was not bolted. हालांकि कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन वह बंद नहीं था. Any moment the water could rush in. किसी भी क्षण पानी आ सकता है. The women were panicky. महिलाएं घबरा गई. छोटू, they wailed that what will happen to our छोटू. छोटू, वे चिल्लाए, हमारे छोटू को क्या होगा. Suddenly the police discovered that one of the bedroom windows was open, but it was too small for an adult to crawl in. अचानक पुलिस को पता चला कि बेडरूम की एक खिड़की खुली हुई थी, लेकिन एक वयस्क के लिए रेंगने के लिए यह बहुत छोटा था. Only a child could. सिर्फ एक बच्चा ही कर सकता था. But no one was willing to let their children take the risk. लेकिन कोई भी अपने बच्चों को जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं था. Out of nowhere, Jimmy emerged. कहीं से भी चिमी उभरी. Let me help. मुझे मदद करने दो. I can easily crawl in and get छोटू out, she offered. मैं आसानी से अंदर रेंग सकती हूँ और छोटू को बाहर निकाल सकती हूँ, उसने बताया.
There was no time to waste. बर्बाद करने का समय नहीं था. The policeman lowered Jimmy to the window jump. पुलिसकर्मियों ने जिमी को खिड़की से नीचे उतारा. They told her, we will drop you a rope ladder through the window. उन्होंने उसे बताया, हम तुमको खिड़की से रस्सी की सीढ़ी गिरा देंगे. Without a moment's hesitation, Jimmy jumped through the window. एक पल की झिझक के बिना चिमी खिड़की से कूद गई. छोटू was sleeping soundly. छोटू गहरी नींद में सो रहा था. Picking him up, Jimmy put him on her back and tied him tight to herself with a bedsheet. उसे उठाकर चिमी ने अपनी पीठ पर बिठाया और एक चादर से कसकर बांध लिया. Slowly she climbed up the ladder and peeped through the window. धीरे धीरे वह सीढ़ी पर चढ़ गई और खिड़की से झांकने लगी. Carefully she undid the bedsheet and handed it with the child to a policeman. ध्यान से उसने चादर खोली और बच्चे के साथ एक पुलिसकर्मी को सौंप दिया. Then she crawled out of the window. फिर वह खिड़की से बाहर आ गई. Both Jimmy and Chotu were taken to the second floor where Parvati Kaki, Gauri Bhabi and others were watching. Chotu, who was up by now, saw so many people around him and burst out crying. चिमी और छोटू दोनों को दूसरी मंजिल पर ले जाया गया, जहां पार्वती काकी और गौरी भाभी और अन्य देख रहे थे. छोटू, जो अब तक उठ चुका था, उसने अपने आसपास इतने सारे लोगों को देखा और फूट-फूट कर रोने लगा. Cheers greeted चिमी. सभी चिमी को उत्साहित करने लगे और बधाई दी. गौरी भाभी hugged चिमी while पार्वती काकी fondled her grandson. गौरी भाभी ने चिमी को गले लगाया जबकि पार्वती काकी ने अपने पोते को प्यार किया. चिमी did not know what the fuss was all about. चिमी को नहीं पता था कि हंगामा क्या है. Come here, चिमी, पार्वती काकी called her. यहाँ आओ, चिमी, पार्वती काकी ने उसे बुलाया. चिमी hesitated, but पार्वती काकी almost dragged चिमी to her and hugged her. चिमी हिचकिचाई, लेकिन पार्वती काकी ने लगभग चिमी को अपने पास खींच लिया और गले लगा लिया. Daughter चिमी, she said, you have shown that it is courage and humanity that counts, not your caste or position. उसने बेटी चिमी, उसने कहा, आपने दिखाया है कि यह साहस और मानवता है जो आपकी जाति या स्थिति नहीं है. After 2 days, the flood water began to recede. 2 दिनों के बाद बाढ़ का पानी कम होने लगा. As soon as life returned to normal in Pune, the police inspector of the locality met Jimmy and asked her what reward she would like to have for her bravery. जैसे ही पुणे में जनजीवन सामान्य हुआ, इलाके के पुलिस निरीक्षक ने जिमी से मुलाकात की और उससे पूछा कि वह अपनी बहादुरी के लिए इनाम में क्या चाहती हैं. The entire neighborhood was there. To everyone's surprise, Jimmy said, I have already got the reward and opportunity to play with Chotu. पूरा मोहल्ला वहीं था. सभी को आश्चर्यचकित करते हुए जिमी ने कहा, मुझे पहले ही इनाम मिल चुका है, छोटू के साथ खेलने का मौका. She pushed for a while and added, I should like to go to school if you can help me. वह थोड़ी देर रुकी और आगे कहा, अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो मुझे स्कूल जाना अच्छा लगेगा. The inspector was helpless, but Vinayak Bhai came forward and said, we will bear the expenses of Jimmy's schooling. इंस्पेक्टर लाचार था, लेकिन विनायक भाई ने आगे आकर कहा, हम जिमी की स्कूल शिक्षा का खर्च वहन करेंगे. She can stay with us as long as she wants. वह जब तक चाहे हमारे साथ रह सकती हैं. Jimmy was delighted. At last she had a place to stay, a little Chotu to play with.
जिमी प्रसन्न थी। अंत में उसके पास रहने के लिए एक जगह थी और छोटू के साथ खेलने के लिए छोटू